السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، ایمان والا بننا، مسلمان بننا۔ یہ چیز کے بارے میں اگر میں بیان کرنا شروع کر دوں تو جتنا بیان کروں بہت کم ہے۔ ہم اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بغیر پوچھے ایمان والا بنایا، مسلمان بنایا۔ اگر انسان یہ ایک چیز دیکھ لیتا نا، مسلمان کا غیر مسلم کا انجام کیا ہونے والا ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ایمان والا بننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ دیکھو، آج ہم بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، بھائی آ جاؤ نماز کی طرف، مسجد کی طرف آ جاؤ، آؤ اللہ کی طرف بول۔ لیکن بہت سارے بھائیوں نے ہماری بات کو مانتے نہیں، کیونکہ ان کو اللہ کے بارے میں معلوم نہیں ہے اور دین کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ اگر دین کے بارے میں معلوم ہوتا ان کو، اللہ جیسا خود قرآن میں اللہ تعالیٰ پچھلے بہت سارے قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے اور ہم کو، اس قوم کو، ہم سب کو ڈراتا ہے، قیامت تک آنے والے ہر ایک انسان کو ڈراتا ہے ان واقعات سے۔ وہ لوگ بہت طاقتور تھے اور ان کو میں ایسا ہلاک کر ڈالوں بول کے بہت سارے واقعات اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، اور ان سے سبق حاصل کرو بولتا ہے اللہ، ان سے تم سبق حاصل کرو۔ ایسا بہت سارے لوگ میرے ہاتھوں میں ختم ہو چکے ہیں، میں ان لوگوں کو برباد کر دیا بول کے خود اللہ فرماتا ہے، اور ہم کو بولتا ہے تم بھی اگر ایسا کرو گے تو تمہارا حال بھی یہی ہوگا، اور ڈراتا ہے ان واقعاتوں سے اللہ تعالی ہم کو اس بارے میں ذرہ برابر بھی غور و فکر نہیں ہے۔ اس لیے ہم دین کے قریب نہیں ہو رہے ہیں، دین سے دور بھاگے جا رہے ہیں۔ یہی بات اگر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرماتا ہے قوم عاد، قوم سمود، ان کے بارے میں دیکھیں گے۔ قوم عاد، قوم سمود بہت زیادہ طاقتور انسان تھے، ان جیسا طاقتور انسان اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ اللہ خود قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے قوم عاد، قوم سمود، ان جیسے طاقتور انسانوں کو میں پیدا نہیں کیا کبھی بھی۔ خود اللہ بولتا ہے اتنے طاقتور ہے یہ قوم عاد، قوم سمود۔ قوم عاد کون ہے؟ ہود علیہ السلام کے قوم۔ ہود علیہ السلام کس میں والے؟ حضرت نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ان کے والے، ان کی طرف سے آتا ہے نبوت، اس میں ہود علیہ السلام، اور وہاں کی قوم عاد کی قوم عاد۔
नूह अलैहिस्सलाम 950 साल अल्लाह की दीन की दावत देते रहे। वो लगा असल मानना नहीं, इनको सताते हैं, इन्हें दीन की दावत देते हैं तो अंगला ऐसा काना में रख लेते हैं। वो लगा उनकी बात नहीं सुनना हमें को कितना बोलते हुए तो भी नहीं सुनते। सो नूह अलैहिस्सलाम पूरा ऐसा 950 साल जर्रा भी उन्होंने हटे नहीं सरका, अल्लाह की दीन की दावत देते रहे लोगों को। उनके बेटों में से, उनकी खानदान में से हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौमे आद की तरफ भेजा अल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम के टाइम को समुंदर में गरक कर दिया, सबको पानी के अंदर अजाब देखो खत्म कर डाला। नूह अलैहिस्सलाम और बाकी ईमान लाए सुनो उनके बेटे, रिवायतों में आता है कि उनके 4 बेटे हैं। एक बेटा तो नाफरमान निकला, उसको अल्लाह तबाह बर्बाद कर दिया, और बाकी उनके 3 बेटे हैं, उनके साथ ही इस अजाब को पार करके चले गए। अल्लाह उन लोगों को भी बचाया। उनकी नस्ल में से हजरत हूद अलैहिस्सलाम को निकाला अल्लाह। अब नूह अलैहिस्सलाम ऐसा अजाब देखने के बाद बहुत सारे लोग इस्लाम में आके फिर अल्लाह कैसा बोला कि वैसा जिंदगी गुजारने लगे। फिर बाद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए। फिर बाद में जाते 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 आहिस्ता 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 फिर खराबी आना शुरू हो गई कौम में। क्या बुराइयां है तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम करती थी, वही बुराइयां इनके अंदर भी आ गई, कौम आद। फिर अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा, जाओ उनको तबलीग करो, उनसे डराओ उनको बोल के। हूद अलैहिस्सलाम आपको फौरन कौम आद की तरफ चल पड़े और बोलने लगे, ए मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा दूसरी किसी की इबादत ना करो, इन बुतों को तुम पूजना ना, मत पूजो इन बुतों को, ये बुत तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, ये खुद अपनी हाथों से कुछ भी खा नहीं सकते, अपनी कानों से कुछ सुन नहीं सकते, अपनी जबान से कुछ भी बोल नहीं सकते। तो ये लोग तुमको क्या करेंगे, क्या फायदा करेंगे और क्या नुकसान करेंगे ये लोग? तुम मेरी दावत को मानो, अगर ना मानोगे तो तुम्हारे हंकिया के सामने तुम्हारे पहले जमाने में, पिछले जमाने में क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम की कौम वास्ता देते हैं हूद अलैहिस्सलाम, तुम्हें देख लो, तुम्हें पीछे फिर को देख लो, नूह अलैहिस्सलाम के कौम वाले माने नहीं माने तो देखो अल्लाह वो लगा कैसा बर्बाद कर डाला की, कितना बड़ा अजाब देखो, वो लगा पूरा कौम को खत्म करके बाजू फेंक डाला की। तो कोई वास्ता देते हैं हूद अलैहिस्सलाम, मानो तुम्हें मेरी बात सुनो वो बोल। वो लगा सरकशी करते हैं हूद अलैहिस्सलाम से, नहीं तुम्हें बोले तो हमें मानना क्या को, वो पीछे से बोलते हैं हूद अलैहिस्सलाम को, तुम्हें बोले तो हमें बुत परस्ती छोड़ते नहीं, हमें ये लगा सी मोहब्बत करते हैं किसी, ये लगा खुद अपनी हाथों से बुढ़ा बनाए, बुद्धा बनाए, वो बुद्धा को पूजा कर लेते हैं खुद अपने हाथों से बना को। हूद अलैहिस्सलाम वही समझाते हैं, तुम्हें तुम्हारे हाथों से बना को, ये लगा को खुदा कहते हैं क्या, तुम्हें लगा तुम्हें डरो अल्लाह की अजाब से। तुम्हारे पिछले कौम में देख लो, नूह अलैहिस्सलाम के कौम को कैसा बर्बाद कर डाले अल्लाह ताला, ये शिर्क की वजह से छे, ये शिर्क को तुम्हें छोड़ डालो, आओ एक अल्लाह की इबादत करो, तुम्हें मेरी तरफ आओ, मेरी बात मानो, तुम्हें मेरी कौम में अल्लाह मुझे नबूवत दिया, नबी बना के तुम्हारी तरफ भेजा मुझे अल्लाह, मेरी बात सुनो। वो बोल को हूद अलैहिस्सलाम समझाते 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 रहे, लेकिन वो लोग नहीं मानते थे बिल्कुल भी। ऐसे ही समझाते समझाते एक दिन ऐसा हुआ, हूद अलैहिस्सलाम जाके फिर अल्लाह ने हूद अलैहिस्सलाम को फरमाया जाओ, फिर जाके उनको दीन की दावत दियो बोल के बोलने के बाद हूद अलैहिस्सलाम कौम आद के पास फिर चले गए, फिर समझाने लगे, ये मेरी कौम डरो, अल्लाह की उस अजाब से डरो और अल्लाह की इबादत करो, उस एक का छे जो पूरे जहान को पालने वाला है, तुम्हारा भी रब है और मेरा भी रब है, और उसे उसका एक का ही तुम इबादत करो, दूसरा किसी की इबादत मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुमको सख्त अजाब देगा,
बोल के अल्लाह ताला की तरफ से हूद अलैहिस्सलाम डराते हैं कौम को। उस वक्त वो कौम कहने लगी, ये हूद, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पूरी कौम एक तरफ चलती है तो तू अकेला एक तरफ चलता है, तेरा दिमाग खराब हो गया। अगर आज भी हम देख ले तो पूरे इंसान एक तरफ चलते हैं तो दूसरे कदम चलता है तो कौन है तो वो बोलता, लेकिन कौन भी दलाइल से दिखता नहीं, प्रूफ दिखता नहीं, कौन भी तहकीक करता नहीं, कौन सही कौन गलती को बोल को एक ही देखता कि गुंपू पूरा एक कदम जाता है वो लगा करेक्ट है, इन अकेला दूसरे तरफ जाता है तो इन खराब है तो बोलता हर एक जन आज भी यही मंजर। वो टाइम पर भी वो लगा वो बोलते हैं, हमें सब भी वो लगा पूरे शिरका करते हैं होने से वो लगा क्या बोलते हैं, हमें सब भी एक तरफ है तो हमारी सी कज्जा को अलग से तू एक जना 600, तू एक जना ये बुद्धा को पूजा करना छोड़ डाल तो बोल को हम ना बोलता है तू तेरा दिमाग खराब हो गया है तो बोल को ये बोल को फिर को अलग बोलते हैं कि तू हर एक बार भी हमारे बुद्धा को गालियां देता रहता ना, ये लगा क्या भी कर सकते नहीं, ये लगा को निकाल डालो तुम्हें, ये लगा कि पूजा करो ना को बोल को तो दिन सारी बोलता रहता ना। जब ये हमारे बुद्धा को गुस्सा आया, गुस्सा को ये बुद्धा में चाहिए, बुद्धे तेरा दिमाग खराब कर रहा ये आजाद दिया वो को बोल को बोलते हैं अलग। जब हूद अलैहिस्सलाम को बहुत बड़ा गुस्सा आ गया, गुस्सा को हूद अलैहिस्सलाम कहने लगे उन कौम से, कौम आद से कहने लगे, मैं अल्लाह की गवाही देता हूं और अल्लाह को गवाह बनाता हूं और तुम भी गवाह रहो, मैं इन बुतों से बेजार हूं। तुम्हें लगा कौन से बुत्ता को तो अपने हाथों से बना को पूछते हैं कि ये बुत्ता सी मैं बेजार हो गया, तुम ना बोल बोल को ये लगा मेरा बाल के बराबर भी कुछ भी मेरा नुकसान नहीं कर सकते, ना मेरा नफा कर सकते ये लोग। मैं खुले आम बोल रहा हूं, इनसे मेरा झगड़ा अब उससे मेरा बनता नहीं, अब उसे मुझे लड़ाई को बोल हमें कैसा बोल लेते, वैसा हूद अलैहिस्सलाम कौम से बोलते हैं, कौम पूरी को टक्कर आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे पूरे बुद्धा को मैं चैलेंज करता हूं है, अगर तुम्हें लोग ये पूरी कौम बुतपरस्ती में फैल गई ना, तुम्हें पूरे कौम पूरा मिलको ये पूरे बुद्धा मिलको क्या करना कर सकते कि कर लो, तुम्हें जाओ मेरा मुझे क्या है तो कर सकते कि वो तुम्हें करो, अगर तुम कुछ भी ना कर सकोगे तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। लेकिन वो लोग ये बात मानते नहीं थे और ये भी फरमाए हूद अलैहिस्सलाम, मुझे एक सेकंड की मोहलत भी मत दियो, मुझे मोहलत देना ना को, अगर तुम्हारे भूतों में इतना ताकत है तो तुम्हारे भूता और तुम्हें पूरे मिल को मुझे हो सके कर को बताओ, मुझे नुकसान पहुंचाओ, तुम्हें लगा तो बोल को खुलेआम चैलेंज करवा ले। और उधर अल्लाह का इरादा भी हो गया, कितना बोलते 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 कितना साल गुजर गए, ये लगा अभी मानना नहीं, अभी अल्लाह को भी गजब आया और अल्लाह भी अजाब का इरादा कर लिया। अब बादल आते रहते, बादल आते रहते, एक दिन बादल आते हैं तो ये लगा समझते रहते कि ये बादल आते हैं सो बारिश के वास्ते हम ना बारिश देता, अच्छा बारिश बरसती हम ना को बोल को बोलते हैं, ये लगा। अब हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह वही फरमाया, नहीं ये बारिश की वजह से नहीं, ये लगा को मैं अब अजाब में मुब्तला कर डालता हूं है, तो बोल डाला। हूद अलैहिस्सलाम सारी कौम को बोले तुम्हें तौबा कर लो, अभी टाइम है, अभी अल्लाह की अजाब नाजिल नहीं हुई, तुम्हें अब तो भी तुम्हें तौबा कर लो, तौबा कर ले तो उस एक अल्लाह की तरफ पलटो और उसकी इबादत करो, ये बुद्धा की पूजा छोड़ डालो। तुम्हें पिछले कौमों को ये बुद्धा की पूजा की वजह से तबाह बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला, तुमना भी ऐसा कर डालता, तबाह बर्बाद कर डालता, अभी अजाब आया नहीं, अब भी सुधर जाओ, अजाब आने के बाद सुधरे तो भी क्या फायदा रहता नहीं। अब अल्लाह बोल रहा है ये जो तुम समझते हो ना, ये बादल बारिश के लिए आया है, ये नई बारिश की वजह से नहीं, ये तुमको बर्बाद करने के लिए, तुम्हारे ऊपर अजाब के लिए आया है, अब तो भी सुधर जाओ तुम्हें को बोलते हैं हूद अलैहिस्सलाम। लेकिन वो कौम नहीं मानती है, उनकी बात मानना नहीं अभी। अब एक दिन हूद अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोल रहा है कौन कौन है तो तुम्हारे ऊपर ईमान लाए की
तुम्हें वो लगा ऐसे चले जाओ। अल्लाह का ये उसूल है, जब भी अजाब देने का फैसला होता है तो नबियों को वही फरमाता कौन कौन है तो नेक लोग है कि कौन कौन है तो ईमान लाए की वो लगा भी तुम्हें भी ऐसे चले जाओ, नहीं करते तो तुम्हारे ऊपर भी अजाब आता को बोल को हर एक पैगंबर क्यों कहते हैं तो नबी आए की, हर एक कितने पैगंबर आए की, हर एक कौम को तबाह बर्बाद करेगी, हर एक बार बताता सो अल्लाह ऐसा अजाब आता है तुम्हें चल जाओ, और कौन है तो नेक वाले है कि ईमान लाए की वो लगा तुम्हें लगा ऐसे चले जाओ, पूरे चल गए तो मैं ये लगा कि ऊपर अजाब डाल डालता हूँ बोलता सो अल्लाह। ये अल्लाह का उसूल, हर एक बार भी अजाब डालते सामने बोल डालता है ऐसा अजाब आता है नेक वाले चले जाओ ऐसी को बोल को, के तो नेक वाले को क्या भी हुए जानी को बोल को, खाली कौन है तो अल्लाह को नहीं मानते कि वो लगा कि ऊपर अल्लाह का अजाब आना को बोल को अल्लाह। या भी वो छुआ बोल रहा था हुद अलैहिस्सलाम को, ये हुद तुम और जो लोग ईमान लाए हो वो लोग यहां से चले जाओ, वो लोग चल जाते। अब देखो अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है वो लोग बहुत ताकतवर इंसान है, यहां तक के 90 कदम से लेकर 130 पर 5 कदम वो लगा की ऊंचाई, 90 कदम से 130 पर 5 कदम ऊंचा वो लगा ताकतवर इंसान। खुद अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है इन जैसे ताकतवर लोगों को मैं कभी भी पैदा नहीं करा, वो लगा इतने ताकतवर इंसान को बोलता है 90 खत के तो बात आ 90 खत से 130 पर 5 खत के दरमियान मुफस्सिरीन बयान करते हैं 90 खत से लेकर 130 पर 5 कदम के दरमियान उनका खत रहता था, इतने ऊंचे ऊंचे लोग और ताकतवर, बहुत ताकतवर। हूद अलैहिस्सलाम बोलते सो तुम्हें मानो, तुम्हें अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की तरफ आए तो तुम्हारी ताकत में और इजाफा कर डालता, तुम्हारी ताकत को और बढ़ा डालता अल्लाह ताला, तुम्हारी ताकत को कम करता नहीं, तुम्हें ताकतवर इंसान, तुम्हारे जैसे इंसानों को आज तक अल्लाह पैदा करा नहीं, तुम्हें मानो को बोले तो वैसा भी अल्लाह नहीं मानते सो हूद अलैहिस्सलाम की बात। अब इतने ताकतवर होकर अल्लाह ताला ये लगा के ऊपर कैसे अजाब भेजा, हवा के जरिए से, सिर्फ एक हवा, वो भी अलग से लगा के ऊपर अजाब डालना को बोल को आसमान से अलग से क्या भी हवा भेजा नहीं अल्लाह, दुनिया की मामूल हवा, दुनिया में मामूल होने हवा आते होता ना वो हवा अलग से स्पेशल होने लगा के ऊपर अजाब आना को बोल को आसमान से अलग हवा नहीं भेजा अल्लाह, दुनिया की हवा जो भेजा अल्लाह ताला, ऐसी तेज हवा, सरकशी हवा। अल्लाह खुद कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है सरकशी हवा, सरकशी हवा कहे तो वो कंट्रोल में अभी आती नहीं, असल कंट्रोल में काबू में बिल्कुल नहीं आती, वैसी सरकशी हवा भेजा अल्लाह ताला। कितने रोज? 7 दिन 8 रात, पूरा इतना तेज हवा, सरकशी हवा पूरा 7 दिन 8 रात चला। और कैसा ये लगा बड़े बड़े पहलवाना ना, 90 खत का तो बात नहीं ना, अल्लाह बोलता है ये लगा पहलवाना, पहलवाना को अब एक ग्राउंड है, पहलवाना मार लेते हैं, मामूल होने ठेले तो पहलवाना चल जाते, क्या हो जोर से दबा को ठेलना पड़ता ना, वैसा अल्लाह बोलता है हवा एक बड़े पहलवाना को उड़ा उड़ा को मारता है हवे में अल्लाह ताला, हवे के जरिए से फटक फटक को मारता है अल्लाह ताला हवे में। इतने बड़े ताकतवर होकर, इतने ऊंचे कदम होकर भी 7 दिन 8 रात सरकशी हवा के अंदर इनको सजा दिया, बर्बाद कर दिया। और हमको बताता है कुरान के अंदर ये मुखातब, अगर तुम लोग 8वें दिन उन लोगों को देख लेते ना तो उनका हाल कैसा है कि अल्लाह बयान करता है, हम ना बोलता है तुम्हें लगा को बोल को 8वें दिन वो लगा का हाल क्या हो कि देख ले तो लगा का सिचुएशन कैसा है करते, तो अल्लाह खुद बयान फरमाता है कुरान के अंदर। खजूर के झाड़ में खजूरा रहते ना, वो खजूरा हवे को कैसा है तो फटक जाकर पड़ जाकर रहते हैं। अबे हमारे झाड़ है, हमारे झाड़ को जामा कैसा आ जाते हैं, छड़ को पड़ जाते हैं, वैसा उतने ताकतवर उतने पहलवाना होकर भी झाड़ के खजूरों की तना कैसा है तो खड़ जाकर पड़ जाते रहती, वैसा ये लगा पड़ जाको है को बोल के बोलता है अल्लाह ताला 8वें दिन। 90 कदम के तो बात है भाई, 90 कदम का इंसान के तो बात है। और खुद अल्लाह बोलता है मैं इतना ताकतवर इंसान को कभी पैदा करनी, ये लगा उतने ताकतवर इंसान को बोल को खुद अल्लाह बोलता है।
वो लगा तो देखो क्या करे कि उतने ताकतवर होकर भी, उतने कदम ऊंचे होकर भी अल्लाह सिर्फ हवा के जरिए से ये लगा को तबाह और बर्बाद कर दिया। 8वें दिन देखे तो कौन भी बाकी नहीं। अल्लाह बोलता है कुरान में, इसके बाद फौरन अल्लाह बोलता है उनमें से क्या तुमको एक जना तो दिखता है जिसको अल्लाह ने छोड़ दिया हो। अल्लाह एक बार अजाब देना शुरू करेगा तो किसे भी छोड़ता नहीं, सबको तबाह और बर्बाद कर डालता। वो हमने पूछता है क्या तुमने कौन तो वैसा वाला एक जना तो दिखता है क्या आज को बोल अल्लाह पूछता है कौन तो भी बाकी है क्या एक जना तो भी को बोल को बोलता है अल्लाह ताला। वो लगा कि नाम और निशान पूरा मिटा डालो मई को बोल को ये हमने कुरान के अंदर अल्लाह बोलता है। ये असल कुरान के अंदर ये वाकया अल्लाह क्यों बताता है हमने, पिछले कब की जमाने की कौम ना, ये कितने हजार साल की कौम पिछले जमाने की, ये हमारे इस जमाने वाले को ये कुरान के अंदर कई को बताता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई को बताया है, हमने कई को बताता है कुरान के जरिए से ये वाकया पूरा। इससे सबक हासिल करो। वो लगा उतने ताकतवर होने के बावजूद मैं उनको कैसा तबाह बर्बाद कर डालो। वो लगा मेरी आयतों से झुटलाए, मेरा आयतों का कहा ना माने, वो लगा झुटलाए, सरकशी करे मेरे आयतों से, उस वजह से उनको हलाक कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया मैंने। अगर तुम भी, हम लोगों को अल्लाह बोलता है अगर तुम भी उन जैसे बन जाओगे तो तुमको भी अल्लाह ताला तबाह बर्बाद कर देगा। हमें तो 5-6 फीट भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 6 फीट, हम 6 कदम, हमारा अल्लाह को जर्रा बराबर भी नहीं होता, बहुत आसानी से उछाल को फेंक डालता हमको। 90 कदम से लेकर 130 पर 5 कदम वाला गुचल्ला हवा के अंदर तबाह बर्बाद कर डाला के तो 5-6 कदम वाले हमें, हमारा क्या हो, अल्लाह को क्या हिसाब होता अल्लाह का हमारा। ये पूरा खिस्से हमना खाली स्टोरी साकेरात में हमने छोड़ डाला नहीं, अल्लाह खाली सुनको छोड़ डालने का वास्ते नहीं है, सब भी अल्लाह कुरान के अंदर महफूज रखो, कई को रखे महफूज अल्लाह इन वाक्यातों से तुम सबक हासिल करो। तुम्हें लगा भी अगर मेरा कहा ना माने होगे तो तुम ना भी मैं साथ सख्त अजाब देता हूं, लेकिन उस जमाने में कई गुरे बाद जब बीच भी अजाब आ जाते सो आज पिछले कौमा कितने कितने होते बड़े बड़े गुने करे की उससे ज्यादा गुने इस उम्मत करते हैं, इस उम्मत के लोग करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा। फिर अजाब कई को आना नहीं, वो लगा करे संगत से अजाबा कई का आगे अल्लाह वादी संगत से क्या भी अजाब देता नहीं, मोहलत देते 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 भी आखिर अल्लाह अजाब नाजिल कर देता। आज हमें इतने करने के बावजूद भी अजाब कई को आना नहीं। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, उनकी दुआ के वजह से आज हम बाकी है। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोको, अल्लाह से दुआ नहीं मांगना है तो कब कीजिए, हमारे से कब की पहले से अल्लाह सबको खत्म कर को दुनिया को तोड़ फोड़ को कयामत नाजिल कर डालता सो अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करे, अल्लाह के दरबार में दुआ करे, या अल्लाह तू कैसा है तो पिछले जमाने पिछले कौमा को बर्बाद कर को खत्म कर डाला की, अजाब दे को खत्म कर डाले की, वैसी अजाब मेरी उम्मत में असल मतले को आ, ऐसी अजाब मतले को आ जिसके वजह से पूरा खत्म हो जाए मेरी उम्मत खत्म हो जाने वाली बड़ी अजाब कभी मेरी उम्मत को देना ना को बोल को अल्लाह के नबी अल्लाह से दुआ मांगे। वो दुआ अल्लाह रद्द नहीं करे, अल्लाह अच्छा वो बोल को कबूल करे। वो दुआ के वजह से आज हमें बाकी है, नहीं तो नूह अलैहिस्सलाम के कौम से भी ज्यादा गुना आज हम कर रहे हैं, और कौम आद कौम समूद के कौम से भी ज्यादा गुना इस उम्मत कर रही है, उससे भी बहुत ज्यादा गुना इस उम्मत कर रही है। लेकिन अजाब इसलिए नहीं आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोना धोना बार बार अपनी उम्मत के लिए जब से नबूवत मिली उस वक्त से लेकर जिस दिन दुनिया से जाने का वक्त हुआ उस वक्त भी सारी जिंदगी मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले, एक ही दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसा नबी के ऊपर दरूद भेजने के लिए हमारे पास 5 मिनट टाइम नहीं है। हम ना ऐसे नबी के ऊपर दरूद भेजना आता नहीं। ऐसी जिंदगी हमारी, ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर
मर जाए ना, सारी जिंदगी हमारे वास्ते तड़पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने खानदान को छोड़ डाले, अपने नवासों को छोड़ डाले, आखिरी वक्त में जाते टाइम को तुमने क्या होना को बोल को, कौन है तो भी मेरे घर वाले, मेरे बच्चे को बोल को, हर एक जना मरते सामने ओच कर लेता, मेरे घर वाले, मेरे बच्चे, मेरे नवासे, मेरे पोतरे को। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए नहीं मांगे, आखिरी वक्त में भी जाते टाइम को भी हमारे लिए, मेरी उम्मत का क्या हाल होगा मेरे जाने के बाद, ये बताने के बाद जब बोलते मैं को बोल को बोले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारी जिंदगी फिर को खाली आखिरी वक्त में इतनी सारी जिंदगी ताइफ में देखो कैसा फतराव मारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, पूरा बदन खूनो खून हो गया, यहां तक के पूरा खून है, चप्पला के अंदर खून चल जाको, फेविक्विक लगाए तो कितना घट्टू चिपक जाता कि वैसा चप्पल भी पाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा चिपक गया। पूरे नबियों के सरदार, मामूल नबी नहीं भूलो, मामूल रसूल भी नहीं, सबसे आला, पूरे नबियों के सरदार, रसूलों में सबसे ज्यादा, सबसे बड़े और अल्लाह के बहुत महबूब नबी, यही से वाले नबी को हालत ये करे, कौन करे, हमें चे, हमारी ये उम्मती चे, ये उम्मती चुना को वो हाल करी, करने के बावजूद भी नो अजाब देने का वक्त, फरिश्ता आ गया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, बोलते हैं या रसूल अल्लाह, तुम्हें कोबल को हुक्म दिए तो, इजाजत दिए तो, दो पहाड़ा के बीच में लगा को पीस को चक्की करवा को खत्म कर को फेंक दाओ तो लगा को के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे मौके में बिल्कुल बेहोश भी हो गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु खांदे के ऊपर डालने को भागे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहोश हो जाओ गिर गए तो ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु पीछे खंडे के ऊपर डालने को दौड़ते 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 चले गए, वो लगा नहीं सी। ऐसा होश आने के बाद फरिश्ता को ऐसा बोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोले जवाब में, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा की हुक्म नहीं देता हूं खत्म करने की, ये लगा ईमान नहीं लाए तो भी मुझे उम्मीद है आइंदा नस्ल, इनका आगे नस्ल मेरे ऊपर ईमान लाएगा, मैं इनको माफ कर दिया, तुम्हें छोड़ डाल को चले जाओ, ऐसी को बोल को जिब्राइल अलैहिस्सलाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले। रहमतुल लिल आलमीन, चुपके नहीं होते, रहमतुल लिल आलमीन ऐसे माफ करे हमारी उम्मत के ऊपर, सारी जिंदगी वो लगा के वास्ते भी दुआ करते रहे, ताइफ में वत्ता फतराव कर को खूनो खून कर डाले तो भी छोड़े नहीं, वो लगा को, वो लगा के बारे में दुआ करते हैं या अल्लाह वो लगा को हिदायत दे डाले, वो लगा आपको इस्लाम कबूल करे ना देखेगा बोल को। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रेडिक्शन भी सही हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा है तो बोले कि आगे नस्ल, इनकी आइंदा नस्ल कंफर्म इस्लाम कबूल करते, मुझे उम्मीद है को कैसा है तो बोले कि वैसा ताइफ वाले आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ इनके ऊपर बैत हो गए और इस्लाम कबूल कर दिए। ऐसे नबी के ऊपर 5 मिनट नहीं है दरूद भेजने के लिए इस उम्मत को टाइम, पूरे गुने करने के लिए टाइम है हमारे पास, खाना पीना फिरना हर एक के लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन ऐसे नबी के ऊपर रोज में एक बार, कम से कम हर दिन एक बार 2 मिनट नहीं लगता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद भेजना, 2 मिनट नहीं लगता। लेकिन आज हमें दरूद भी नहीं भेज सकते, हमारे पास दरूद भेजने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन बाहर हर एक काम के वास्ते हमारे पास टाइम है, ऐसे नबी के ऊपर दरूद भेजने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। फिर ऐसी जिंदगी का क्या मकसद है हमारा, अभी क्या मकसद हमारा, इतना सारी जिंदगी हमारे लिए तड़प को रो रो को हमारे वास्ते तड़पे से नबी के ऊपर एक दिन में एक 5 लहाजे 2 मिनट, कम से कम 2 मिनट पकड़ता, एक बार दरूद भेजने का टाइम नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर जिंदगी का क्या मकसद हमारा, हमें जिंदे रहने का क्या मकसद है, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम देखे नहीं, देख को हमें वो लगा हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे होने से हमारे वास्ते ऐसा करे, को क्या भी नहीं, पूरी उम्मत के लिए आखिरत तक जितने इंसान आते हैं सबके लिए दुआ मांगे, हर एक के वास्ते, अपनी खानदान को दूर फेंक डाले, अपनी खानदान के वास्ते दुआ नहीं मांगे, अपने घर वालों के वास्ते, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम
हजरत हुसैन और हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन। वो लगा को क्या होता कि मालूम, फिर भी वो लगा के बारे में दुआ नहीं मांगे, इस उम्मत के बारे में मांगे, मेरी उम्मत का क्या हाल होता। अब ये पूरा बोलने का मकसद ये है, सबसे पहले हमारे से पहले बहुत ताकतवर कौमों को अल्लाह तबाह बर्बाद कर दिया, उनको उनकी नामो निशान दुनिया से मिटा दिया। हमको मिटा देना बड़ा बात नहीं, अल्लाह को बहुत आसान, अल्लाह को बहुत बहुत आसान अल्लाह को। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी हमारे लिए रोए, हमारे लिए तड़प गए। उना के वास्ते दिन में, हर रोज दिन में 2 मिनट उना के वास्ते निकालो, कम से कम 2 मिनट उना के वास्ते निकालो, हमारे नबी के वास्ते 2 मिनट निकाल को उना के ऊपर दरूद भेजो, एक बार बस है। पहले शुरुआत तो एक बार से करो, एक ही बार में आधा घंटा कर डालता हूं, वही 100 बार दरूद भेजता हूं, 50 बार भेजता हूं, ऐसा क्या भी नको। पहले शुरुआत पहले एक बार से शुरू करो, फिर बाद में बढ़ाते 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 चले जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें दरूद भेजे तो हम नाच फायदा जी, हम नाच फायदा। एक बार दरूद भेजे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 10 रहमता अल्लाह हमारे ऊपर नाजिल फरमाता। 10 एक बार उना के ऊपर हमें दरूद भेजे तो 10 रहमता हमारे ऊपर नाजिल फरमाता अल्लाह ताला। ये भी हमारे फायदा चे, उना के वास्ते क्या भी नहीं, उना के वास्ते क्या हो जी, उना के वास्ते इतना जी अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को पैदा करा सो अल्लाह ताला, उना को हमें क्या की सवाब पहुंचाना को क्या भी नहीं उसमें, हमारे लिए उना को क्या सवाब की जरूरत नहीं है। पूरे नबियों के सरदार, अल्लाह के सबसे ज्यादा महबूब पैगंबर, पूरे नबियों के सरदार, पूरे नबियों से आला हमारे नबी, आखिरी में आए तो भी उनसे ज्यादा महबूब कोई भी नहीं अल्लाह को, उनसे ज्यादा। वैसे नबी को हमें क्या भी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 मिनट रोज में 2 मिनट निकाल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कम से कम एक बार उना के ऊपर दरूद भेजना, वो भी हमारा फायदे के वास्ते चे। 10 रहमतें हमारे ऊपर नाजिल फरमाता, एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमें दरूद भेजे तो करेंगे ना भाई। अल्लाह ताला हम सबको कहने से सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।